Hello friends, in work and energy chapter today we will see one important concept, that is energy, and one type of energy, that is kinetic energy. Actually we have to see two types of energy, kinetic energy and potential energy, but in this video we will see only kinetic energy and its derivation. Okay. सो फ्रेंड्स, जब आप घर पे आते हो स्कूल से थक कर, जब आप घर पे आते हो और अगर समझो आपको मम्मी ने एक छोटा सा भी काम करने के लिए बोला तो आप क्या बोलते हो? ओ मुझ में एनर्जी नहीं है. मीन्स जनरली वी आर यूजिंग एनर्जी वर्ड सो मेनी टाइम्स. तो एनर्जी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो आज हमको देखना है. सो द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी. एकदम सिंपल डेफिनेशन है. कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी. नाउ यूनिट्स ऑफ एनर्जी मतलब हाउ मच एनर्जी is there, so that is calculated, or just to measure the energy, units used are same as the units of work. जो यूनिट्स वर्क के हैं वही यूनिट्स एनर्जी के भी है. तो ऐसा सो लास्ट लेक्चर में हमने अच्छी तरह से देखा है. यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम इज जूल एंड यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम इज अर्ग. सो द सेम यूनिट हियर आल्सो, दैट इज SI unit of energy is joule and CGS unit of energy is erg. There are so many forms of energy. There are mechanical energy, heat energy, light energy, sound energy, electromagnetic energy, chemical energy, nuclear energy, solar energy. So these are the forms of energy, different forms of energy. अगर समझो आपको ऐसा क्वेश्चन है, is the write a short note on energy, then you can write all this. Okay. So friends, today we have to see the kinetic energy. Now look here, this car is moving. Means when any object is in motion, at that time it is with some energy, then that energy is called as kinetic energy. Okay, so the definition of kinetic energy is the energy which an object has because of its motion is called its kinetic energy. So here motion ये word important है. अगर आपको ये भी word ध्यान में रहा तो आप पूरा definition लिख सकते हो. Just easy definition है, the energy which an object has because of its motion is called its kinetic energy. Now look here, just here words are like this, because of its motion. So when motion is possible, when some amount of force is applied to that of the vehicle, then only motion is possible. मतलब यहाँ पे हम वो भी पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं. The work done by a force to displace a stationary object through a distance s is the kinetic energy gained by the object. So ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलता है वो ऑब्जेक्ट को? मीन्स द व्हेन सम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड एंड दैट ऑब्जेक्ट मूव्स, देन सम वर्क डन इज देयर एंड दैट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट. मीन्स व्हाट वी कैन से दैट हियर, और हियर इज द वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. सो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किसके equal है? So that is the work done on the object. So you remember, so here that equation also we can write kinetic energy is equal to F into S. So that is the equation of work. Now let's see this question. Derive the formula for kinetic energy of a freely falling object of mass m मूविंग विथ वेलोसिटी v. ये जो क्वेश्चन है वो आपके बुक में से ही मैंने लिया है. आपके बुक में मतलब जो एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चन दिया है. डिराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. मीन्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करना है और ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ मास m
मूविंग विथ वेलोसिटी v। तो यहाँ पे फ्रीली फॉलिंग लिखा है, मीन्स जस्ट सपोज दैट देयर इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे एक हम टॉय कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो टॉय है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एक ऑब्जेक्ट है ऐसा कंसीडर करेंगे। सो दैट इज मूविंग एंड it is its object's mass is m. So this mass of this object or that of the toy is m, velocity is v. Now look here, means this object before applying force is at rest position. तो स्टूडेंट्स आपको ये सब जो यहाँ पे जो थ्योरी पार्ट है वो भी आपको ध्यान में ही रखना है। तो एक एक करके हम लिख लेते हैं। एट फर्स्ट mass of this object is m. Okay, suppose mass of this stationary object is m. Stationary object means this object is at rest position. मतलब कौन सा भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, मीन्स व्हेन इट इज एट द रेस्ट पोजीशन एंड हियर मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज m. सेकंड, हियर मीन्स दिस ऑब्जेक्ट मूव्स बिकॉज ऑफ एन अप्लाइड फोर्स F। तो यहाँ पे जो लेटर्स हमको यूज करने हैं डेरिवेशन में, वो सब लेटर्स या वो सब सिंबल्स यहाँ पे पहले हम यहाँ पे थ्योरी में लिख लेते हैं। सो हियर when some amount of force is applied to this object, then it starts to move. Then here, but at the beginning velocity of this object is 0. So here u be the initial velocity. ये जो initial velocity मतलब जहाँ पे वो initial velocity क्या है, वो u consider करते हैं। So here the applied force generates acceleration. Means force is applied at that time, here it starts to move and afterward its velocity changes or just it generates acceleration. So here means the after time t velocity of object becomes v. So at the beginning or at initial velocity is u and after some time velocity of that object is v. Okay. So next is the displacement during this time is s. Afterward what happens, we suppose after some time that toy stops, then the displacement of that toy or object is s. मतलब s इतना distance that object has covered. Next point है is the work done. So here in this derivation we have to find out the equation of kinetic energy and therefore here we will consider write the equation of work done. So that is the force into displacement. Now students, here remember while writing any derivation you don't forget to write all this theory part. ये जो theory part है वो आपको लिखना भी important है। So here and ये ज्यादा difficult भी नहीं, आप लोग देख लो, ये सब point आप लोग देख लो, ऐसा लगता है बहुत बड़ा है, but it is very simple. So here this is one of the object. Here mass of object is m. After this force applied is F. Here is the initial velocity u, that is 0. Actually it is at a stationary. Stationary मतलब वहाँ पे वो हिल नहीं रहा है, मतलब क्या है, is the initial velocity is 0 and it is u equal to 0. Final velocity है, acceleration का यहाँ पे इस derivation में use किया है, तो इसके लिए उसके तो acceleration is a, यहाँ पे वो नोट कर लेना जरूरी है। Displacement is s and work done का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लिखा है, force into displacement, because this work done is nothing but what, that is equal to kinetic energy. वो हमने last पेज पे देखा है, work done is equal to kinetic energy. So that's why here it is important to write. Now to derive this equation, here is the, आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखो, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, W is equal to F into S. So in this equation there are two quantities, force and displacement. Means in right side there are two quantities, force and second is displacement. So with the help of Newton's equations we can find we can write the equations in this equation, this equation of force and equation of displacement in this equation, and we can obtain the another equation of work done. So here
तो सो एट फर्स्ट लेट्स राइट इक्वेशन ऑफ फोर्स. सो द फोर्स का इक्वेशन आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो आपने लास्ट चैप्टर में देखा है, अच्छी तरह से पढ़ा है. सो दैट इक्वेशन इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो देखो यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन हमको मिल गया है. नाउ डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अभी लिखना है. सो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कौन सा है वो भी आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने ये इक्वेशन पढ़ा है. दैट इज द इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके, तो in this way here we have written two equation F and S. So before putting this, so here apply conditions in this equation. जो u का जो इक्वेशन है, u का इक्वेशन और वैल्यू ऑफ u यहाँ पे लिख लेते हैं. तो जो ऑब्जेक्ट है या टॉय है, तो एट द बिगिनिंग वो ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट पोजीशन, मतलब वेलोसिटी कुछ भी नहीं था, स्टेशनरी था, और वो ऑब्जेक्ट या रेस्ट पोजीशन में था. देन u इज इक्वल टू 0. सो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन. तो इक्वेशन कैसा रहेगा, s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके, सो इन दिस वे हियर वी गॉट दिस टू इक्वेशन. अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो वहां उस इक्वेशन में ये दोनों इक्वेशंस पुट करते हैं, f का इक्वेशन और s का इक्वेशन. देन इक्वेशन विल बी लाइक दिस. यहाँ पे देखो वर्क इज इक्वल टू ma, फोर्स की जगह पे यहाँ पे ये जो सेकंड इक्वेशन है ना वो यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे s की जगह पे या एट द प्लेस ऑफ s here they are substituted इक्वेशन ऑफ हाफ at स्क्वायर. s का जो इक्वेशन है वो सब्स्टिट्यूट किया है. नाउ लुक इन दिस इक्वेशन, here there are two times a का ये टू टाइम्स है, तो हम ये इक्वेशन और कैसे लिख सकते हैं. so here we can write in this way, w is equal to half m एक ही टाइम है, बट here a and t दोनों टू टाइम्स है, तो इसके लिए at स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं. Now here this is one of the equation, but we can write this equation in another way also. इस इक्वेशन को हम और अच्छी तरह से लिख सकते हैं. तो कैसे देखो, और एक इक्वेशन अगर हम यूज करेंगे जो आपने फर्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ा है, और वो जो इक्वेशन है वो है फाइनल वेलोसिटी का. तो फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at. अगेन हियर means the value of u we can substitute from our first page, that is the first page पे हमने देखा था ना u का वैल्यू. तो क्या है u is, और यहाँ पे भी लिखा है देखो u is equal to 0. so substitute value of u is equal to 0. then how will be the equation, here v is equal to at, 0 plus at और v is equal to 80. अगर हम v का स्क्वायर करते तो कैसे रहेगा इक्वेशन, v square is equal to at square. Okay, so here in this way we can write v square at the place of at square. यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में 4 नंबर की इक्वेशन में यहाँ पे जहाँ पे हमने at स्क्वायर लिखा है वहां पे क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इजीली लिख सकते हैं. देन इक्वेशन इज लाइक दिस, w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर. समझ में आया आपको, यहाँ पे जो 80 स्क्वायर है या 80 है, उस 80 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो हियर इट इज v स्क्वायर. ओके, सो हियर इज द वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, इट इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय दैट ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मोशन. तो वर्क डन का ही वैल्यू जो है वही वैल्यू किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ओके, यू रिमेम्बर दिस इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. सो दिस इज नथिंग बट द डेरिवेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी. तो समझ में आया आपको सबको, यहाँ पे कैसे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, और 5 मार्क के लिए आपको ये एक क्वेश्चन आ सकता है. ओके,
यू रिमेम्बर एंड डोंट ड्रॉ दैट डायग्राम। जो हमने पिछले पेज पे जो कार का जो फोटो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किया है, या मतलब वहां पे पुट किया है, लेकिन आपको वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अनदर टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, थैंक यू।